as well, we are going to continue the same topic, what is the rural communication and how the folk media and the other kind of media is affecting the communication in rural areas. So we are going to complete this topic. So in the last class, what we discussed at what is how we can do the effective messaging in rural marketing. In rural market, basically we all know that the people and the consumers are totally different from the urban areas. Not in the basically in the concept of the culture, basically in the concept of the languages, they are more we can say that they are little bit staunch. यानी कि वो काफी ज्यादा बोल सकते हैं ना कि एक ही अपने लैंग्वेज और कल्चर पे काफी ज्यादा वो एक्सेप्ट करते हैं, मतलब उसी पे वो चलते हैं, राइट? So basically here in this basically in this how we can do this effective marketing कैसे कर सकते हैं rural marketing में effective messaging, sorry. So by using the languages, by languages को use करके local languages we can use, right? Second thing is like pictorial presentation. We can show the pictures, we can derive that pictures from the rural background, rural environment. Like I already tell you about the Coca-Cola advertisement, that for Coca-Cola they are showing a woman who is going there with that pot. Why? Because like if you are thirsty, instead of water you can drink Coca-Cola, and water pump is also showed there. So basically the pictorial presentation is somehow more useful because of the literacy rate, that the literacy rate is comparatively low as comparison to the urban areas, that is low in the rural areas. So the people are, maybe it is possible that they are not able to understand all the written advertisement, they are not able to read the newspaper. It might be possible that so many people are there like this. So the pictorial presentation is something which is helpful for the communication in the local areas, or we can say rural areas. The next one is message form. See, whatever message you are using, like obviously for advertisement there should be a proper message design, मतलब कुछ मैसेज होना चाहिए. Whatever message you are showing, that should be related with the rural areas, that should not be related with some other areas. Like for example, I already tell you about the advertisement of Apple phone. Like whatever they are showing a very technical advertisement, it might be possible that so many people can't able to understand it, right? And the people are from of the foreigners and all. So we don't need to use that kind of thing. We have to show the messages which is related with the native areas as well as related with the problems of the rural areas. Okay, so it might be possible that they will start focusing on those messages more as comparison to the other messages, right? Clear हो रहा है सब कुछ? मैं जो बता रही हूँ बातें जो भी समझ में आ रहा है everyone? Okay. So next point is कि like sources, like many times जो source होना चाहिए message का, it is coming from the ads to the credibility in the rural market. Like message source कैसा होना चाहिए, likable होना चाहिए, trustworthy होना चाहिए, ठीक है? So that's why the local people or rural people are going to focus on that. अब रोल क्या है मीडिया का इन रूरल मार्केट? व्हाट इज द रोल ऑफ मीडिया इन द रूरल मार्केट? रूरल मार्केट में मीडिया का क्या रोल है? सो रूरल मतलब बहुत सारे आज भी कन्वेंशनल मास मीडिया वहां चल रहे हैं. कन्वेंशनल का मतलब समझते हो क्या होता है? दैट इज ट्रेडिशनल, रिलेटेड विद द ट्रेडिशन. सो ट्रेडिशनल चीजें भी बहुत सारी हैं, ट्रेडिशनल मीडिया आज भी चल रहा है. सो द रूरल मीडिया जो है दैट कैन बी क्लासिफाइड इनटू द तीन तरीकों से इनको क्लासिफाई किया गया है. The first one is the conventional mass media. Conventional mass media है, non conventional mass media है, और एक personalized media है. अब conventional, non conventional और personalized media क्या होता है, ये ध्यान से सुनिएगा. The conventional media is something that is a traditional media जो चलता आ रहा है, ठीक है, जैसे टेलीविजन, रेडियो, all these things. Non conventional media is something where we are using the events, जैसे कि मान लीजिए आपका हाट, मेला, ये सब जो चीजें होती है, दिस विल कम इन द नॉन कन्वेंशनल. एंड पर्सनलाइज मीडिया में हम यूज कर सकते हैं जैसे कि आपका वर्ड ऑफ माउथ हो गया, जैसे लोगो से रिलेटेड डायरेक्ट आपको मेल आया, जैसे कि मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा एंड आई गॉट मेल फ्रॉम द कंपनी, सो दैट इज द पर्सनलाइज्ड मीडिया. सो यहाँ तीन तरीके के मीडिया है, तो आप एक बॉक्स बना लो. एक में लिखो कन्वेंशनल मास मीडिया, सेकेंड में लिखो नॉन कन्वेंशनल मास मीडिया, और थर्ड में लिखो पर्सनलाइज्ड मीडिया. इन तीनों का बॉक्स बना लो एक बार. तो सबसे पहले राइट इन कन्वेंशनल मीडिया, मास मीडिया. कन्वेंशनल मास मीडिया क्या होता है इसमें लिखे, मास मीडिया इज रिलेटेड विद द व्हेन वी आर कवरिंग सो मेनी पीपल्स. जैसे कि टेलीविजन में जो एडवर्टीजमेंट आ रहा है, दैट इज नॉट फॉर वन और टू पीपल बट दैट इज फॉर सो मेनी कंज्यूमर्स, राइट? सो दैट इज कन्वेंशनल मास मीडिया. इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, लिखिए टेलीविजन,
टेलीविजन, रेडियो, टेलीविजन, रेडियो, प्रेस। प्रेस क्या होता है पता है ना, न्यूज़पेपर वगैरह की बात हो रही है यहाँ पर। प्रेस, सिनेमा, सिनेमा हॉल में भी देखा है तुम लोगों ने, एडवर्टीजमेंट वगैरह होता है वहां पर भी, सिनेमा हॉल में एडवर्टीजमेंट, तो सिनेमा। और रूरल एरियाज में जो सिनेमा हॉल होते हैं, दैट इज नॉट एज सच ऑर्गेनाइज्ड, बट स्टिल देयर आर सो मेनी कंपनीज हु आर बेसिकली शोइंग एडवर्टीजमेंट देयर, राइट। सो सिनेमा हो गया, आउटडोर लिखिए, सिनेमा हो गया, फिर लिखिए आउटडोर में वॉल पेंटिंग, वॉल पेंटिंग हो गया, और होर्डिंग हो गया। होर्डिंग होते हैं बड़े बड़े जो बोर्ड्स वगैरह नहीं लगते कंपनी के, बड़े बड़े से बोर्ड जो आप लोग रोड साइड भी एरियाज में देखते होंगे, ऊपर में बड़े बड़े बोर्ड्स लगे होते हैं एडवर्टीजमेंट के लिए। सो दीज ऑल आर द कन्वेंशनल मास मीडिया। यानी कि इसमें क्या क्या चीजें आ गई आपकी, टीवी टेलीविजन आ गया, रेडियो आ गया, न्यूज़पेपर्स आ गया, ठीक है, उसके अलावा वॉल पेंटिंग आ गया, होर्डिंग्स आ गए। These all are the part of the conventional mass media. Now the second one, conventional media. ये sorry ये conventional थे सारे, sorry. Next one is non-conventional media. These all are conventional, जो भी थे आपके टीवी टेलीविजन रेडियो जो भी थे। अब नॉन कन्वेंशनल में लिखिए, नॉन कन्वेंशनल मीडिया में क्या आएगा, नॉन कन्वेंशनल मीडिया में राइट, हार्ट एंड मेला, हार्ट, हार्ट HAAT, हार्ट HERT वाला नहीं, हार्ट HAAT वाला हार्ट। नेक्स्ट लिखिए नॉन कन्वेंशनल मीडिया में हार्ट HAAT हार्ट, एंड नेक्स्ट लिखिए हार्ट एंड मेला, हार्ट हो गया, मेला फेयर जिसको हम कहते हैं, गांव में जो आए दिन मेला वगैरह तो लगता ही है। नेक्स्ट लिखिए फोक मीडिया, फोक FOL के, फोक मीडिया जिसको बोलते हैं लोक, लोक जैसे लोक गान को सुना है, फोक सॉन्ग कहते हैं, वैसे ही लोक यानी कि वहां के एरिया के हिसाब से, उनके कल्चर के हिसाब से कुछ मीडिया यूटिलाइज होता है, मीडिया को कैसे हम यूज करते हैं, कैसे मैसेज पहुंचाते हैं। सो फोक मीडिया में क्या क्या चीजें आएंगी, पपेट शोज, पपेट शोज, कठपुतली नाच जिसको कहते हैं, पपेट शोज, मैजिक शो, पपेट शोज, मैजिक शो, मैजिक वगैरह जादू वगैरह करके वहां पर कम्युनिकेशन, मतलब दीज यहाँ पर इन सब जगह पे हम एडवर्टीजमेंट या कम्युनिकेशन करने की कोशिश करते हैं, मतलब वी आर बेसिकली डूइंग द एडवर्टीजमेंट या वी आर डूइंग कम्युनिकेशन, ठीक है। सो नॉन कन्वेंशनल में हो गया हार्ट, मेला, मैजिक शोज, पपेट शोज। उसके अलावा लिखिए मंडी, मंडी जैसे सब्जियों की मंडी है ना, सब्जी वगैरह की मंडी वगैरह जहां लगती है वहां, मंडी MANDI मंडी। नेक्स्ट लिखिए वीडियो वैन, वीडियो वैन यानी वैन जो है उसमें वीडियो बनाते हुए जाता है जो वहां से क्रॉस करते हुए, सो दैट इज वीडियो वैन, लाइक द वीडियो इज ऑन, वैन इज बेसिकली मोबाइल, मतलब एक बोल सकते हैं मोबाइल वैन होता है, वो इधर उधर जाता है और वो बेसिकली कम्युनिकेट करते हुए जाता है। सो मोबाइल वैन आप लोगों ने कभी सुना होगा, जैसे ये मोबाइल वैन सबसे ज्यादा पता है कौन यूज करता है, वो जो बेडशीट वगैरह सेल करने वाले आपने देखा होगा, वो मोबाइल वैन में क्या करते हैं, अपने सामान को डालते हैं और वो घूमते रहते हैं और अनाउंसमेंट करते रहते हैं, ठीक है। ये तो हो गया एक मोबाइल वैन। एक होता है वीडियो वैन, वीडियो वैन यानी कि उसमें क्या होता है, वीडियो वगैरह चलती रहती है, जैसे कोको कोला की चल रही है, आपके मैगी की, मतलब इनकी चल रही है एंड वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहा है। सो वीडियो वैन इसको कहते हैं, मोबाइल वैन, वीडियो वैन, मंडी हो गया, हार्ट हो गया, फेयर हो गया, मैजिक शो, पपेट शोज, दीज ऑल कम्स अंडर द नॉन कन्वेंशनल मीडिया। ये सब किस में आएगा, नॉन कन्वेंशनल मीडिया में। क्लियर हो गया एवरीवन, नॉन कन्वेंशनल मीडिया? यस मैम। नेक्स्ट वन इज पर्सनलाइज्ड मीडिया। अब पर्सनलाइज्ड मीडिया क्या होता है, पर्सनलाइज्ड मीडिया क्या होगा, इसमें लिखिए डायरेक्ट मेल, डायरेक्ट मेल यानी पर्सन टू पर्सन, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई पर्सन है जो बार बार कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो डायरेक्ट मेल वाला कंसेप्ट है, ठीक है। लिस्ट में क्या कौन कौन से आएगा, डायरेक्ट मेलर, ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है एक पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सेल का मतलब क्या होता है कि जिस जगह पे से आप सामान बेचते हो ना, जैसे बिलिंग काउंटर है तो वहीं पर कुछ सामान शो करना, तो पॉइंट ऑफ सेल कहते हैं, जिसको डेमोन्स्ट्रेशन भी कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ना दुकान में बहुत अच्छे सजा वजा की चीजें रखी होती है, दैट इज डेमोन्स्ट्रेशन।
कि हम लोग देख के इन्फ्लुएंस और प्रोडक्ट को खरीदें, ठीक है ना। तो ये हो गया। फिर वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ पता है क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड ऑफ माउथ? वर्ड ऑफ माउथ का मतलब होता है कि जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को रिकमेंड करता है प्रोडक्ट के बारे में। जैसे मान लो कि अगर मैंने कोई फोन लिया तो आई एम रिकमेंडिंग द अदर पर्सन टू परचेज दैट फोन। इफ आई एम परचेजिंग वन क्लोथ देन आई एम आल्सो रिकमेंडिंग द अदर पर्सन टू परचेज सेम क्लोथ, राइट। सो हियर द, या इसको कहते हैं वर्ड ऑफ माउथ, यानी कि जब आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा किसी प्रोडक्ट के साथ, देन इन दैट केस यू आर गोइंग टू रिकमेंड एंड यू आर गोइंग टू डू द positive publicity about that product in front of so many people. You are going to recommend the people. So उसको कहते हैं word of mouth. तो ये सारे personalized media हो, ठीक है, यानी जो totally person पे dependent है, that is totally dependent on the people. So here these are the ways, these are the role, मतलब ये सारे आपके थे कुछ various type के media vehicle जो rural areas में use होते हैं, conventional, non-conventional and personalized. अब हम बात करते थोड़ा सा डीपली इन सबके बारे में एक एक करके। तो सबसे पहले आप बात करते हैं वॉल पेंटिंग का। सो इंडियन रूरल मासेस के लिए सबसे अच्छा जो अगर हम बोले तरीका है एडवर्टीजमेंट का, दैट इज वॉल पेंटिंग। सो वॉल पेंटिंग अगर हम बात करें तो वॉल पेंटिंग एक बहुत ट्रेडिशनल तरीका है और जो आपके रूरल पीपल हैं वो बहुत जल्दी बोल सकते हैं इससे अट्रैक्ट होते हैं। वॉल पेंटिंग इंपॉर्टेंट इसलिए है, तो क्यों इसको वॉल पेंटिंग को यूज किया जाता है, उसका तरीका ये है कि देखो पहले के टाइम पे बहुत लोग क्या, टेलीविजन नहीं होता था, 1980s में तो टेलीविजन आया ही है, राइट। अब ऐसे सिचुएशन में जो लोगों को कैसे रिमाइंड रहेंगी चीजें, जैसे मैंने मैगी का एडवर्टीजमेंट 10 बार देखा तो मुझे 10 बार मैगी का देखने के बाद मुझे अब मैगी लर्न हो जाता है ना। अब तो खैर वो बहुत ही पुराना ब्रांड है और एफएमसीजी प्रोडक्ट है। तो बार बार यहाँ रखने के लिए, रिटेंशन के लिए वॉल पेंटिंग रूरल एरियाज में यूज होता है, ठीक है। एंड दे आर बेसिकली फॉर रिमाइंड द रूरल पीपल अबाउट द नेम, अबाउट द लोगोज ऑफ द ब्रांड, ठीक है। उसके अलावा उसमें और भी चीजें होती हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा टीएमटी वगैरह, जो आप लोगों ने देखा होगा ना, छड़ वगैरह का प्रचार के लिए बहुत सी जगह पे वॉल को यूज किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप लोकल एरियाज में जाते होंगे तो लिखता होगा ना, भरोसे का दम है या कुछ समथिंग, दिस काइंड ऑफ लाइन इज यूज्ड ऑलवेज देयर, राइट। सो इन शॉर्ट द स्टेटमेंट्स आर देयर। स्टेटमेंट्स भी होता है जिससे आप प्रॉमिस कर रहे हो कि भाई ये वाला आप टीएमटी या फिर ये छड़ वगैरह जो भी आप घर बनाने के लिए लोगे तो दैट विल बी द परफेक्ट, right. So here they are not only showing the logos and name of the brand but as well as they are also using the keywords of the promise, यानी वो क्या प्रॉमिस कर रहा है, वो क्या एश्योर कर रहा है ब्रांड, वो भी आप वॉल पेंटिंग में एक लाइन लिखते हो। साथ साथ में जो प्रोडक्ट आप सेल करो उस प्रोडक्ट का डिजाइन, मतलब उस प्रोडक्ट की पेंटिंग भी आप करते हो ऑब्वियसली। सो वॉल पेंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है अगर हम देखें तो बेसिकली ये इकोनॉमिकल है एज कंपैरिजन टू जो अदर ट्रेडिशनल आपका तरीका है मीडिया को यूज करने का, जैसे टेलीविजन ये सब, उससे इकोनॉमिकल है, उससे सस्ता है, ठीक है। कंपनी को सस्ता पड़ता है ट्रेडिशनल ये आपका वॉल पेंटिंग। उसके अलावा इसमें जरूरत भी किसकी पड़ती है, ज्यादातर मैन पावर की, यानी लोग ही तो होंगे जो पेंटिंग करते हैं, और ठीक है। सो मैन, यहाँ पर जो सिचुएशन है, यहाँ पर जो आपका मैन पावर और जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब लोगों की जरूरत तो पड़ेगी एडवर्टीजमेंट में, क्योंकि आप वॉल पेंटिंग कराओगे तो समवन इज डूइंग दैट वर्क, पेंटिंग का काम तो कोई ना कोई करेगा। लेकिन बाकी जो हम देखते हैं ना, जो बाकी जो एडवर्टीजमेंट है जो टेलीविजन वगैरह पे आता है, उसमें बहुत सारे लोगों का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, अगर आप शूटिंग कर रहे हो कहीं तो उस जगह के प्लेस का, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। बट यहाँ वॉल पेंटिंग में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की और मैन पावर की ज्यादा जरूरत नहीं, बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है। तो कंपैरेटिवली टू द अदर टाइप ऑफ कन्वेंशनल मीडिया, द वॉल पेंटिंग इज द इकोनॉमिकल वन, ठीक है, इकोनॉमिक है, सस्ता है। सेकेंड क्या है वॉल पेंटिंग का, that it can be easily customized in accordance with the regional language variation without impacting the artistic content। यानी कि वॉल पेंटिंग जो है वो कंपैरेटिवली अगर हम उसको देखें तो तुरंत से हम उसको चेंज कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। अगर आपने कोई नया प्रोडक्ट को एड ऑन किया या प्रोडक्ट में आपने कुछ बेटर क्वालिटी एड ऑन किया, तो ऐसे इसको कहते हैं ब्रांड रेजुविनेशन। याद रखिएगा ये टर्म, खैर अभी आपके काम का नहीं है, बट द ब्रांड रेजुविनेशन इज समथिंग which is always used to show that now the product is little bit changed or the product is enhanced,
द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज इनहांस्ड। जैसे कि देखा होगा आप लोगों ने हॉर्लिक्स में जैसे नहीं आता न्यू हॉर्लिक्स, सुना है ना, सुपर, एक्स्ट्रा, ये जो वर्ड्स यूज होता है ये हमेशा क्या होता है, जो आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें आप थोड़ा सा क्वालिटी में बदलाव लाते हो और आप उसके ऊपर एक एड ऑन नेक्स्ट एक अलग वर्ड यूज कर लेते हो, न्यू, एक्स्ट्रा, सुपर, है ना। तो ये जो होता है इसके लिए भी अगर कोई भी प्रोडक्ट में आपके चेंजेस आया है तो आप वॉल पेंटिंग में इजिली चेंज कर सकते हो, यू कैन कस्टमाइज द वॉल पेंटिंग इजिली, बट द एडवर्टीजमेंट इज कैन नॉट बी कस्टमाइज, लाइक एडवर्टीजमेंट में आप सुधार नहीं कर सकते, है ना, दोबारा से पूरा एडवर्टीजमेंट बनाना पड़ेगा। सही बात है या नहीं, क्लियर है बात? यस तो इकोनॉमिकल भी है, इजिली कस्टमाइज भी हो जाता है, और ऑडियंस का रिकॉल रेट यानी ऑडियंस को जो लर्न करने की जो क्षमता है आपकी वॉल पेंटिंग से वो अदर टाइप ऑफ कन्वेंशनल मीडिया से हाई है, यानी कंपैरेटिवली टू द अदर काइंड ऑफ मीडिया, जो दूसरे टाइप के आपके मीडिया है यानी कि टेलीविजन और ये, उससे ज्यादा रिकॉल कर पाते हैं लोग आपके वॉल पेंटिंग से। सो वी आर एबल टू गेन द ऑडियंस मोर बिकॉज ऑफ द वॉल पेंटिंग। सो हियर द प्राइस इज इकोनॉमिकल, वी कैन कस्टमाइज द, मतलब कंपनी के लिए बेनिफिट्स है, कस्टमाइज कर सकते हैं इजिली, हम कुछ भी बदलाव ला सकते हैं वॉल पेंटिंग में, और तीसरा रिकॉल, मतलब ऑडियंस जो है वो जल्दी रिकॉल कर पाते हैं बिकॉज ऑफ वॉल पेंटिंग। सो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बेसिकली वॉल पेंटिंग। क्लियर हो गई बात, समझ में आया? अब लिमिटेशन क्या है वॉल पेंटिंग का, ये तो समझ आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन कुछ और भी है जो इसमें नुकसान भी है। लिमिटेशन क्या है? पहला तो लैक ऑफ स्पेस, यानी जगह नहीं मिलना, और बहुत सारी जगह पे आजकल पोस्टर चिपकाना, एडवर्टीजमेंट करना मना हो चुका है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप पटना विमेंस कॉलेज का वॉल देख लीजिए, वहां लिखा है कि यहाँ पर किसी भी तरीके का विज्ञापन चिपकाना सख्त मना है ना। सो द लैक ऑफ स्पेसेस, लैक मतलब अब जगह की बहुत ज्यादा कमी है, वॉल स्पेस की बहुत ज्यादा कमी हो गई है, और जहां वॉल स्पेस है भी वो प्लेस उतना इफेक्टिव नहीं है। जैसे एग्जाम्पल में अगर आपने नोटिस किया होगा कि आप किसी भी गांव में अगर एंटर करने से पहले आपको वॉल पेंटिंग दिखता है, पता है क्यों दिखता है? सबसे पहले स्टार्टिंग के घरों में क्यों दिखता है? क्योंकि जब आप कहीं एंटर कर रहे हो आपका सबसे पहला नजर चारों तरफ जब पड़ेगा तो यू आर इजिली एबल टू सी द वॉल पेंटिंग। बट अगर किसी घर में, किसी गली में, कोने में अगर आप वॉल पेंटिंग करते हो तो ऐसे केस में हो सकता है कि वो कम इफेक्टिव हो, राइट? So in short, we can say that there is a lack of wall spaces as well as the prominent space, or the, we can say, the better space is not available for doing the wall painting. ठीक है? और उसके बाद भी जो रूरल बेस है, मतलब जो रूरल आपका जो दीवार होता है, रूरल एरियाज में जो घर बने उनके जो दीवार हैं, बहुत कम जगह पे स्मूथ वॉल प्रेजेंट होते हैं, मतलब वेरी लेस प्लेस देयर इज अ स्मूथ वॉल, एंड मोस्ट ऑफ द प्लेस जो होते हैं वो रफ वॉल होते हैं, तो जिसकी वजह से जो पेंटिंग होता है ना वो बहुत ज्यादा बेटर और परफेक्ट नहीं बन पाता है। ठीक है, तो ये भी एक रीजन है वॉल पेंटिंग का, गलत मतलब गड़बड़ हो सकता है, वॉल पेंटिंग स्मूथ वॉल अवेलेबल नहीं है, जिसका फाइनल आउटपुट बहुत ज्यादा बेटर नहीं हो सकता। उसके अलावा बहुत सारे वॉल पे तो राइट ही नहीं है कंपनी को अपना विज्ञापन, वही बताया था मैंने एडवर्टीजमेंट करने का, नो एक्सक्लूसिव वॉल राइट्स गिवन टू द कंपनी, कंपनी को वॉल राइट्स मिले नहीं है। और एक चीज और भी है कि आप यहाँ पर ये भी चीज देख सकते हो कि लाइक कई बार आप पेंटिंग करते हो और दूसरे किसी और चीज का या दूसरे कोई और कंपनी उस पर पेंट करके कुछ भी मतलब उसको हटा देता है या उसके ऊपर अलग दूसरा पेंटिंग कर देता है। So this can be also done, the painting or the painting of wall painting can be replaced by the other company as well. So these are various limitations of the wall painting. So I thought सबको wall painting clear हो गया होगा, समझ में आ गया wall painting की क्या क्या limitations है? Everyone class? Yes ma'am. ठीक है ना? तो नेक्स्ट में अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कुछ फोक मीडिया, यानी कि थिएटर, फोक थिएटर। फोक थिएटर समझते हो क्या होता है? जैसे लोकगीत के लिए, या फिर आप देखते हो कुछ लोकल पीपल है, ज्यादातर राजस्थान वगैरह के लोकल जो लोग होते हैं जो डांस वगैरह करते हैं, जैसे होता है ना वहाँ का घूमर वगैरह जो डांस है वहाँ का, वो सब करते हैं, तो दैट इज फोक डांस, फोक प्रोग्राम वगैरह। सो फोक मीडिया क्या है? तो फोक मीडिया जो है वो फेस टू फेस एक पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, और यहाँ पर जो फोक मीडिया होता है वो बेसिकली उनका एम एडवर्टीजमेंट नहीं होता है कि वो एडवर्टीजमेंट के लिए वो कर रहे हैं, दैट इज नॉट द थिंग, बट द कंपनी इज यूजिंग दैट फॉर एडवर्टीजमेंट, राइट?
तो यहाँ पर एक गाने के थ्रू, डांस के थ्रू, थ्योरेटिकल या फिर ड्रामा के थ्रू, थियोरेटिकल फॉर्म में, ठीक है, इसके थ्रू, फिर पपेट्री शोज हो गया आपका, स्ट्रीट शोज हो गया, फिर आपके मैजिक शोज हो गए, ये सारा का सारा जो है वो हमारे इंडिया का क्या है, दीज ऑल आर बेसिकली पार्ट ऑफ द कल्चर, राइट। सो फोक मीडिया जो है उसका यूटिलाइजेशन कंपनी करती है कि जैसे कहीं पर भी अगर पपेट शोज चल रहा है तो दे आर शोइंग द एडवर्टीजमेंट इन दैट। सो काइंड ऑफ फोक्स मीडिया तो है फोक थिएटर। तो फोक थिएटर क्या है, जैसे फोक थिएटर जहां पर फोक सॉन्ग और डांस होता है, इंटरटेनमेंट का एक सिंपल तरीका है, ठीक है, लोकल लोग इसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, और एक चीज ये इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल भी कई बार होता है, जैसे बहुत सारी जगह पे रामायण वगैरह भी आपने देखा होगा, थिएटर शोज वगैरह होते हैं ना। सो हियर इन द फोक थिएटर द इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशनल थिंग्स आर ऑल्सो शोड, एज वेल एज फोक थिएटर जो है कई बार ऐसी चीजें दिखाता है जिसके लिए पर्सन लाइक पीपल्स आर सपोर्टिंग इट, लाइक ब्रिटिश राज के अगेंस्ट कुछ चीजें दिखा रहा है, ठीक है, सोशल लेवल्स की चीजें दिखा रहा है, तो लोग जो है उनको पसंद करते हैं फोक चीजों को, ठीक है, फोक या लोक जो हमारा लोकल कल्चर है उसको। और इन सब चीजों को देखते हुए द पीपल, जैसे कहीं पर चाइल्ड मैरिज के बारे में दिखा रहा सोशल लेवल में, कहीं पर पब्लिक कॉन्शियसनेस के बारे में दिखाया जाता है, तो ये एजुकेशनल भी होते हैं, मतलब फोक डांस, फोक थिएटर, दीज आर एजुकेशनल एज वेल। तो so many peoples like this, so the companies are using the folk theater for the advertisement. क्लियर हो गया फोक थिएटर क्या होता है। उसके अलावा फोक सॉन्ग्स, तो फोक सॉन्ग्स आपके क्या होंगे, बेसिकली सिंपल और डायरेक्ट कॉम्पोजिशन होते हैं जो ट्रांसमिटेड होते हैं बेसिकली एक जनरेशन से दूसरे, एक जनरेशन से टू द नेक्स्ट, एंड कुछ नॉट थ्रू द रिटन वर्ड्स बट बाय यूजिंग दिस फोक लैंग्वेज। और फोक सॉन्ग जो होंगे वो बेसिकली सिंपल होंगे, यूनिफॉर्मिटी होगा, रिदम होगा, और इस सॉन्ग के स्टैंजाज मतलब थोड़े से अलग होते हैं, लोकगीत वगैरह, आपने बिहार का भी लोकगीत सुना होगा आई गेस। तो यहाँ पर ट्रेडिशनल सॉन्ग्स और बैलेड्स में भी यहाँ एडवर्टीजमेंट किया जाता है। फोक डांस वगैरह पता ही है आपको, कल्चरल, जैसे कि हर एक जगह का अपना अपना फोक डांस होता है, जैसे कि आपने सुना होगा उड़ीसा का उड़िया है ना, फिर ये क्या बोलते हैं उड़ीसी है, उड़ीसा का उड़ीसी डांस है, असम का बिहू, इस तरीके के जो डांस होते हैं आपके डांस के फॉर्म होंगे, केरला के अलग होते हैं, कर्नाटका के, आंध्रा के कुचिपुड़ी, ये सब बहुत सारे हैं, भरतनाट्यम है ना, तो ये सारे क्या है आपके फोक डांसेस के फॉर्म्स है। तो ये सारी जो चीजें होती हैं इनमें भी हम क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं। मैजिक शोज जो है, मैजिक शोज बेसिकली रूरल पीपल्स को बहुत पसंद है, आज भी आप देखना मैजिक शोज में वहाँ काफी रश होता है, और यहाँ पर वो क्यूरियस होते हैं, मतलब रूरल पीपल जो है वो बाहर की जो दुनिया से आज घिरे पड़े हैं, जरूरी नहीं कि हर एक एरियाज में वही सिचुएशन हो। सो तो फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पस दे हैव वेरी लिमिटेड सोर्सेज एंड लिटरली दे एंजॉय दैट। सो बेसिकली मैजिक शोज ऑल्सो, द पपेट शोज आर समथिंग रिलेटेड विद द फोक ट्रेडिशन ऑफ राजस्थान, ठीक है। और यहाँ पर इसके थ्रू भी हम कम्युनिकेशन करते हैं। प्रॉब्लम्स क्या है रूरल कम्युनिकेशन का, व्हाट आर द वेरियस प्रॉब्लम्स इन द रूरल कम्युनिकेशन, व्हाट आर द वेरियस प्रॉब्लम। तो आज भी हमारे यहाँ पर रूरल एरियाज में ज्यादा कन्वेंशनल मीडिया को यूज किया जाता है। किसको यूज किया जाता है, किसको यूज किया जाता है, आज भी कौन से मीडिया को यूज किया जाता है रूरल एरियाज में, कन्वेंशनल मीडिया, ठीक है। सो व्हाट आर द वेरियस प्रॉब्लम्स इन द रूरल कम्युनिकेशन, रूरल कम्युनिकेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, हम इस पे आ जाते हैं। तो हम लोगों ने तो दो चीजें पढ़ा, ठीक है, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा वॉल पेंटिंग के बारे में, हमने पढ़ा थोड़ा सा पपेट्स के बारे में, हमने पढ़ा मैजिक शोज, थिएटर्स के बारे में, बेसिकली फोक फॉर्म्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो ये सारे तरीके से हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं। ना प्रॉब्लम्स जो हैं कम्युनिकेशन में, आपके रूरल कम्युनिकेशन में क्या क्या है कि आपका जो है दैट इज हाईली स्कैटर्ड, ज्योग्राफिकली बहुत ज्यादा स्कैटर्ड है, यानी बहुत जगह पे है, ज्योग्राफिकली कंसंट्रेटेड एरिया में रूरल एरियाज नहीं है, बहुत ज्यादा डिस्पर्स्ड फॉर्म में, यानी अलग अलग छितरे हुए बोल सकते हैं ना, स्प्रेडेड फॉर्म में। सो इट शुड बी बोल, और एक बात और है कि रूरल एरियाज बिकॉज ऑफ सो मेनी प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद द बोल सकते हैं ना कि culture is not the problem, but because of the cultural things there are so many hindrances for the company. And एक और चीज प्रॉब्लम है डिस्ट्रीब्यूशन का, प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का, लैंग्वेजेस का प्रॉब्लम, ठीक है,
उसके बाद फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लिटरेसी रेट बहुत लो है, जो नॉर्मल आपके है ना प्रॉब्लम्स रूरल एरियाज में, मेजॉरिटी ऑफ वही प्रॉब्लम्स है, ठीक है। उसके अलावा रूरल क्रेडिट की प्रॉब्लम है, बैंकिंग फैसिलिटीज की प्रॉब्लम है। स्प्यूरियस ब्रांड बहुत फ्लोरिश हो गया। स्प्यूरियस ब्रांड का मतलब समझते हो क्या होता है? स्प्यूरियस इज समथिंग विच इज रिलेटेड विद नकली। नकली जैसे बोलते हैं ना कि लैक्मे का काजल सेम एज इट इज आपको दिखेगा, लेकिन वो एक्चुअल में लैक्मे नहीं है। सो बहुत ज्यादा रूरल एरियाज में आपके बोल सकते हैं पायरेटेड, नकली, स्प्यूरियस प्रोडक्ट, डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा सेल हो रहे हैं, ये भी प्रॉब्लम है। उसके अलावा भी डिमांड जो है बहुत सारे लोगों का सीजनल है, हमेशा डिमांड नहीं है प्रोडक्ट्स का। कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा हाई। अगर हम बिहार के रूरल एरियाज को पे फोकस करेंगे तो अलग ही कल्चर, वहां गुजरात में करेंगे तो वहां भी अलग ही कल्चर। सो बिकॉज ऑफ द सो मच डाइवर्सिटी, सो इट इज वेरी मच कॉम्प्लेक्स फॉर द कंपनी टू फोकस ऑल द रूरल एरियाज इन वन गो। मतलब एक ही बार में सारे रूरल एरियाज पे फोकस कर ले, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन सारे अर्बन एरियाज में फोकस कर ले पॉसिबल है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी एंड इंग्लिश, राइट, बिकॉज दे आर एजुकेटेड। बट द रूरल एरिया सबको फोकस कर ले, दैट इज डिफिकल्ट, ठीक है ना। तो ये सारी चीजों की वजह से, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, जिसकी वजह से मार्केट पूरा बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है, और इसी वजह से कंपनी जो है वो प्रॉपरली एडवर्टीजमेंट या मीडिया का यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रही। आज भी वो कन्वेंशनल मीडिया पे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर डिपेंडेंट। एंड नेक्स्ट जो है, जो आपका रूरल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, तो आई गेस सबको पता होगा प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी, जो 4Ps वगैरह बताया है मैंने, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं बाद में कभी प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि किस तरीके से कम्युनिटी के लिए किस तरीके से प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, जब आपका एग्जामिनेशन के बाद क्लासेस होंगी, देन विल कवर ऑल द अदर टॉपिक्स एज वेल। Anyone have any doubt in today's conventional, non-conventional problems in the rural areas? Anyone have any doubt? No, ma'am. Okay. See you all in the next class. ठीक है, मिलते हैं हम लोग next